पे नंबर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पे नंबर 1, गर्दन तक नहीं हिलना चाहिए, खाली मेरे को देखना है, मैट को देखना है, मेरे को और मैट को, इस तरीके से। पे नंबर 1, चैप्टर 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। रिवीजन के समय मैट हमेशा सामने खोल करके रखा करो। एप्लीकेबिलिटी देख रहे हो क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1800 is applicable all over India except Jammu and Kashmir. So it is applicable all over India except Jammu and Kashmir. Even partnership act and SOGA, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे SOGA, they are applicable all over India except Jammu and Kashmir. पक्का? फिर हम लोग बात किए थे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was enacted by Imperial Legislative Council. Remember Imperial Legislative Council of the British India. Imperial Legislative Council of British India enacted on 25 April 1872. It was enacted on 25th of April 1800. Enact हो गया था 25 अप्रैल 1872. अप्लाई हुआ था 1 सितंबर. इनैक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, 25th of April 1872, but was made applicable 1 September 1872 all over India except Jammu and Kashmir. फिर हम लोग बात किए थे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H. अगर कोई इसको सबसेक्शन बोल रहा है मतलब समझ जाओ वो टीचर नहीं है, चीटर है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H, कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ. 5 शब्द है कॉन्ट्रैक्ट का. एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ. An agreement enforceable by law means there are two features of contract. There must be an agreement and legal obligation. There must be an agreement and legal obligation. अब एक जब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आएगा ना, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H. कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन. सब लिखिएगा, फिर एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन भी करके आइएगा. Agreement according to section 2 clause number E, according to section 2 clause number E, every promise and every set of promises forming consideration for each other, every promise and every set of promises forming consideration for each other may be defined as an agreement. फिर नीचे में एग्रीमेंट के मेन 2 फीचर होते हैं ना, एग्रीमेंट के 2 फीचर देखो ना, वहां देखो ना, मैट में भी देखते जाओ बीच में. प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, there must be 2 or more person. No person can make an agreement with himself. This is called plurality of person. Consensus ad idem. Consensus ad idem. Meeting of the minds. फिर अपने लीगल ऑब्लिगेशन का बात कर लिए थे. लीगल ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर B. एक्सेप्टेंस और ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन सेम है. एक्सेप्टेंस होगा तभी ना ऑब्लिगेशन होगा, बिना एक्सेप्टेंस के क्या ऑब्लिगेशन बनेगा? नहीं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर B, when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal once accepted becomes a promise. फिर हम लोग बात किए थे all agreements are not contract. Only those agreements which have legal obligation are contract. There are 2 types of agreement which always lack legal obligation. There are 2 types of agreement which always lack legal obligation. So they are not contract. 2 types of agreement which lack legal are contract and not contracts. Agreement relating to social matter. Agreement relating to social matter में आप लिख देंगे when 2 friends promises each other to go out for a movie, one friend turns out for the movie, other friend does not turn out for the movie. The friend who has turned out for the movie cannot sue the friend who has not turned out for the movie. फिर था आपका फेवरेट सोशल मैटर के बाद आपका फेवरेट डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. Balfour versus Balfour. Husband working in Ceylon agreed to pay his wife living in England fixed monthly allowance, which is stopped because wife had cheated. Wife can sue, cannot sue? Cannot sue. It was a domestic arrangement between husband and wife. So all agreements are not contract. All contracts are agreement. All agreements are not contract. All contracts are agreement. जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देना चाहिए, फिर एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन देना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये 2 केस बताना चाहिए. ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज सम एग्रीमेंट्स लैक लीगल ऑब्लिगेशन. फॉर एग्जांपल फॉलोइंग आर द 2 एग्रीमेंट्स. पॉइंट नंबर A, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, एक्सप्लेन. पॉइंट नंबर B, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एक्सप्लेन. फिर आप लिख देंगे फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द अबव एग्रीमेंट डिड नॉट हैव लीगल ऑब्लिगेशन सो दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट. फिर आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेसी of which agreement is a genus. So all agreements are not contract, but all contracts are agreement. I repeat myself. जब एग्जाम में आएगा ना ये all contracts are agreement, all agreements are not contract. Define contract.
डिफाइन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन का फीचर्स को एक्सप्लेन करो. फिर देयर आर टू एग्रीमेंट्स व्हिच लैक लीगल ऑब्लिगेशन सो दे आर नॉट ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट, सोशल मैटर, हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों को एक्सप्लेन किया. फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख दिया. Thus from the above discussions we conclude that all contracts are agreement but all agreements are not contract. Agreement is a genus of which contract is a species. Are you through with this? फिर अपने वो 3 कॉन्सिक्वेंस का बात किए थे. लीगल क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप. लीगल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लॉ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट व्हिच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही तो है. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लॉ ऑफ दोज एग्रीमेंट व्हिच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. और लास्ट में एग्रीमेंट इज अ जीनस, कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेसी. ऑल एग्रीमेंट्स आर बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर. फिर अपने सेक्शन 10 में आ गए थे क्या? सेक्शन 10 में दोस्तों अपने बात किए थे, अगर एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल करना है, दैट एग्रीमेंट मस्ट सैटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10. पहला कंडीशन क्या था? ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी, ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लीगल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, लीगल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. पक्का? सबसे पहला क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. आज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में आएंगे बट रिवीजन करते चल रहे हैं. पहले पेज नंबर 3 में भी आ जाओ. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है क्या? ये लास्ट क्लास सीखे थे अपने. पेज नंबर 3 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में फर्क होता है क्या? जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है, जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है, मैं जादू करके तुम्हारे लिए खजाना ढूंढ दूंगा. शुरू से वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट. माइनर एग्रीमेंट, लुनेटिक एग्रीमेंट शुरू से वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वॉइड एग्रीमेंट. पक्का? मैंने इस पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आगे जाकर के वॉर हो गया. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले वैलिड था, बाद में वॉइड, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. मैंने सोनू निगम को अपॉइंट किया गाना गाने के लिए, उस समय वैलिड था, गला खराब होने के बाद वॉइड हो गया. मतलब जितना भी सुपर मीनिंग, इम्पॉसिबिलिटी आता है वो सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. The agreements which are void from the beginning are called void agreement, but the agreements which are valid at the time when they were entered, the agreements which are valid at the time when they were entered, later on because of supervening impossibility they become void. Void contract. पक्का? voidable contract क्या होता है? voidable contract means which is void at the option of the agreed party, which is void at the option of one party but not at the option of other party. Voidable contract is void at the option of one party, void or enforceable at the option of one party but not at the option of other. Enforceable or void at the option of which party? Agreed party. Such contracts are called voidable contract. जब फ्रॉड होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, कोअर्शन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोअर्शन, ये सब में क्या होता है? voidable. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आता है क्या? which is not legally valid. अच्छा, एक चीज याद रखना, which is not allowed by law are called illegal. एक चीज याद रखना, जितना भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो वॉइड तो होता ही है, बट सारा वॉइड इलीगल नहीं होता. इसको मार डाल, ये इलीगल है और वॉइड भी है. मैंने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, वॉइड है, इलीगल नहीं. ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल. अच्छा, एक चीज और बताए थे अगर याद हो, इलीगल से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी इलीगल हो जाते हैं. देख, इसको मार डालना है, ठीक है? तुम टैक्सी लेकर के आएगा, टैक्सी वाला तुम बनेगा, समझ में आया? ये खाली टैक्सी सही समय पर लेकर के आ रहा है और टैक्सी का विंडो जो है ना सही समय पर खोल रहा है ताकि ये शूटर शूट कर सके. ये टैक्सी वाला क्या रिलेटेड एग्रीमेंट है क्या? कोलैटरल है क्या? इलीगल से कोलैटरल यानी रिलेटेड एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं? इलीगल हो जाते हैं. लेकिन वॉइड से कोलैटरल एग्रीमेंट वैलिड है. मैंने माइनर को टीवी बेचा, वॉइड है क्या? मैंने माइनर को टीवी बेचा, क्या है? मैंने होलसेलर से ये टीवी खरीदा था, वैलिड. पक्का? अनइनफोर्सिबल मतलब समझ आता है? they cease to become enforceable. बोलो, they cease to become enforceable because of some technical defect. Example, time bar debt because of limitation. हर डेट मर जाता है कितना साल बाद? 3 साल बाद. फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझ आ रहा है क्या? The contracts which are made through words either oral, written, are called express. Implied with the conduct of the party, implied on the basis of performance. Executed when both the parties have performed. When both the parties have performed, the contract is called executed contract. Executory मतलब
एक पार्टी का बाकी है तो यूनिलैटरल, दोनों का परफॉर्म करना बाकी है तो बाइलैटरल। एग्जीक्यूटेड मतलब परफॉर्म दोनों ने कर दिया, एग्जीक्यूटरी मतलब बाकी है परफॉर्म करना, एक का बाकी है तो यूनिलैटरल, दोनों का बाकी है तो बाइलैटरल। फिर अपने भागे थे नेक्स्ट पेज में, जितना भी कोर्ट का जजमेंट होता है ना, कोर्ट का जजमेंट भी बाइंडिंग है कि नॉट बाइंडिंग है? कोर्ट का जजमेंट क्या है? बाइंडिंग है। जितना भी जजमेंट आता है कोर्ट का उसको अपने बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड अंडर सील, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड अंडर सील। और बाद बाकी कॉन्ट्रैक्ट को अपने को बोलते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट का जजमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सील एंड रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज व्हाट? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब थ्रू विद दिस फिर अपने बात कर लिए थे इलीगल एंड वॉइड का, ये सब बात हो चुका है, बात हो चुका मतलब अभी तो बात हुआ पक्का। फिर अपने आगे थे पे नंबर 5 में, पे नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं। लेट कमर वाले बच्चे पे नंबर 5 में आए, पहला 4 पन्ना रिवीजन हो चुका है, पे नंबर 5 में आ जाए लेट कमर वाले बच्चे। लेट कमर वाले बच्चे जो कमर हिलाते हिलाते आए हैं पे नंबर 5 में आए, फटाफट सुनना तो पड़ेगा, लेट हो 5 मिनट हम लोग का जीवन का लियो। पे नंबर 5 थोड़ा फास्ट, बाबा जी बुक निकालिए बाबा जी, पेज 5। एवरीवन रेडी? पे नंबर 5 लेट अस रीड इट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर का सेक्शन 2A। हम रिवीजन क्लास का नियम वापस से बता दे, लेट कमर्स के लिए गर्दन तक हिलाना मना है क्योंकि बहुत फटाफट वाला रिवीजन मेरे को करवाना है। हालांकि रिवीजन क्लास मेरे को करवाना नहीं चाहिए था बिकॉज एवरी क्लास वाज आवर रिवीजन क्लास ओनली। I made sure that we had revised the previous classes lot of multiple times, but still एक बार लास्ट में एक फाइनल रिवीजन हो जाए तो एक मिडास टच मिल जाता है, इसलिए वो रिवीजन क्लास दिया जा रहा है अपने 1-2 लाइव बैच को कैंसिल करके। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब जो इंटर बैच चल रहा है ना मई जून 19 के लिए, उन लोग का ऑलरेडी 30-40 क्लास हो रखा है और उन लोग का एग्जाम मई 19 में है, तो आई कैन अफोर्ड दैट लग्जरी कि 1-2 क्लास उन लोग का कैंसिल, उन लोग भी थोड़ा राहत मिल जाता है। अच्छा हुआ तो इसलिए आई एक्सपेक्ट कि क्योंकि 1-2 लाइव बैच मेरा कैंसिल होकर के रिवीजन क्लास रखा जा रहा है तो आई एक्सपेक्ट कि 100% कंसंट्रेशन आना चाहिए। चलो पे नंबर 5 में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रेडी? ऑफर सेक्शन 2A, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B। एग्जाम में जब ऑफर एक्सेप्टेंस का कोई केस स्टडी वगैरह आएगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना पड़ेगा क्या ऑफर एक्सेप्टेंस का? बिल्कुल, हम लोग डेफिनेशन क्लास में याद किए थे। ऑफर का डेफिनेशन याद आ रहा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज A, when a person signifies his willingness, when a person signifies his willingness to do or abstain from doing anything, when a person signifies his willingness, when a person signifies his willingness to do or abstain from doing anything, then with a view to obtain the assent of that other, then such person is said to make an offer. हम क्यों सामने वालों को अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं? ताकि उसका हाँ पा सके। So when a person signifies his willingness, when a person signifies willingness to do or abstain from doing something to obtain the assent of that other, the person is said to make an offer. The person making the offer is called offerer. The person to whom the offer is made is called offeree. पक्का? फिर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ किस में आ गए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। फटाफट सबसे पहले क्या है? जनरल ऑफर। When the offer is made to uncertain body of individual, when the offer is made to uncertain body of individual, it is called general offer. Such an offer can be accepted by anyone. पक्का? Such an offer can be accepted by anyone, and no need of communication of acceptance is required. Held in the case of Carlyle versus Carbolic Smoke Ball and Company. Held in the case of Carlyle versus Carbolic Smoke Ball and Company. क्या हुआ था इसमें? एक बूढ़ी औरत न्यूज़पेपर पढ़ करके दवाई खरीद ली थी और दवाई खाने के बाद उसको इन्फ्लुएंजा हो गया था। न्यूज़पेपर वाला जो मैगजीन में छपा हुआ था ना, जो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट छपा था, उसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या एडवर्टाइजमेंट किया था न्यूज़पेपर में? जो भी मेरा बनाया हुआ दवाई खाएगा और उसको साइड इफेक्ट होगा, हम लोग उसको कंपनसेशन देंगे। कार्लाइल बूढ़ी औरत थी, ऐसे उम्र में बोले तो दवाइयों का शौक हो ही जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ी, मुंह में पानी आ गया, खाली इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर जब वो कंपनसेशन मांगने, तुम कौन हो? हम तो तुमको जानते भी नहीं है। अरे बूढ़ी औरत तुम कहां से आ गई? हम तुमको थोड़ी ना ऑफर दिए, तुम्हारा नाम बोले थे क्या? रे नहीं बोले थे, इसलिए तो कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। ये समय क्या हो गया था? बच्चा खो गया था, रामू खोज करके ला दिया था क्या? न्यूज़पेपर में छपाया गया था, मालिक रिवॉर्ड देगा, बट मालिक रिवॉर्ड देगा, ये जनरल ऑफर था ना। बट एटलीस्ट अ पर्सन शुड बी अवेयर अबाउट द ऑफर। सर्वेंट वाज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर, इसलिए उसको रिवॉर्ड नहीं मिला। फिर स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर क्या होता है? व्हेन एन ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन, इट्स कॉल्ड स्पेशल ऑफर।
ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। फिर काउंटर एंड क्रॉस। When the offeree gives a different offer, it is known as counter offer. When offeree gives a different offer, it is known as counter offer. Exactly same offer, cross offer. Open offer, continuing offer. Open offer, continuing offer which goes on and on. Standing offer. दूध वाला को रोज हम लोग ऑफर देते, कल आओगे ना, बताओ ना कल आओगे ना, वो तो आते ही रहेगा ना। लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं उसको मना करके जाता है, आना बंद कर दे, तो स्टैंडिंग ऑफर चलते जाता है जब तक हम लोग मना नहीं करते। एक याद है टैसिट ऑफर होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, बताए थे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है जब मशीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, मशीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कभी एटीएम से पैसा निकाला है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कभी वेइंग मशीन से टिकट निकाला है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कभी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से पेप्सी निकाला है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। बात किए थे ना, वेंडिंग मशीन होता है आजकल, सिक्का डालो, पैसा नोट वगैरह डालो, अपने आप सामान आ जाएगा। कैसे बच्चे हैं, वो सब क्या है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ओके फिर पे नंबर 6 में रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर में आओ। रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर में क्या लीगल रिलेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, ऑफर शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए। ऑफर शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट, पक्का। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस ऑल्सो, express oral written. Implied means implied by the conduct of the party. Bus flying on the road is an implied offer. We board the bus, it's an implied acceptance. Offer अलग है, invitation अलग है. Offer is different from invitation to make an offer. पक्का। हम चाहते हैं ना सामने वाला मेरे को क्या करे, ऑफर। उसके लिए हमको ललचाना तो पड़ेगा, इनवाइट तो करना पड़ेगा, आइए ऑफर करिए। तो ऑफर करिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनवाइट। विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड, ऑफर नहीं है, इनविटेशन है। तो अगर हम दुकान में माल सजा रखे हैं, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड कर रखे हैं, ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन है, पक्का। एक मॉडल को कपड़ा पहना रखे हैं, जीन्स टी शर्ट पहना रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, ये लड़का आकर के खोलना चालू कर दिया, गलत है, गलत है। मैंने इनवाइट किया था, आपको तरीका ही नहीं है, आपको आकर के बात करना चाहिए था। आप ऑफर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, नहीं समझ में आया। ये ऑफर नहीं है कि आप हाँ बोल करके ले जाएंगे। तो विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड क्या है, इनविटेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग अपना प्रोडक्ट का जब तारीफ करते हैं तो ऑफर कर देते हैं, क्या ले जाइए, कि इनविटेशन है कि आइएगा, कभी ना कभी ऑफर लेकर के आइएगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट मतलब मेरा मोबाइल में ये है, मेरा मोबाइल ऐसा है, मेरा मोबाइल वैसा, मेरा मोबाइल ऐसा है, मंजूर है, हट मंजूर है। हम तो इनवाइट किए हैं, तुमको बोलना चाहिए था बेचेंगे क्या, नहीं। तो विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड। प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन, पक्का। ऑक्शन सेल, इस तारीख को आइएगा, 25 तारीख को आइए, मेहरबान कर 25 तारीख को आइएगा, ऑक्शन है, हम आपको इनवाइट करें, वहां करके क्या लगेगा, बोली क्या हो गया, ऑफर, पक्का। तो 4 केस बताओ इनविटेशन टू ऑफर का। विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, ऑक्शन सेल, प्रोस्पेक्टस, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल एंड प्रोस्पेक्टस, ये सब क्या है, इनविटेशन। पेज नंबर 7 में हम लोग आ चुके हैं। पेज 7 में आ चुके हैं क्या, पेज 7, रूल्स गवर्निंग ऑफर दिखाई दे रहा है क्या, बोलो। रूल्स गवर्निंग ऑफर मस्ट बी, हाईलाइट करवा रखे हैं जो याद करना है। अब क्या जान दे दे, ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट है, याद आया। I promise to pay you a higher price if the pen proves to be lucky. It's too vague. It is invalid. Higher price क्या होता है, lucky क्या होता है, invalid offer है। Offer must be communicated to offeree. Express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है, general भी हो सकता है, पक्का। हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कार्लाइल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, ये 3 लोग केस स्टडी पढ़े थे। नेक्स्ट पेज में ऑफर अलग होता है, इन्विटेशन टू ऑफर अलग। रिवीजन हो चुका क्या, कितना केस होता है इन्विटेशन टू ऑफर का। विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल, प्रोस्पेक्टस। फिर लैप्स ऑफ ऑफर में आ गए थे हम लोग। सेक्शन 6 केस भी 6, सेक्शन 6 केस भी 6, 6 केस में ऑफर रहेगा कि लैप्स हो जाएगा। जब ऑफर ऑफरी में से कोई भी मर गया, जब ऑफरी मना कर दिया या काउंटर ऑफर दे दिया, ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया या काउंटर ऑफर। तो सुनो, एग्जाम में केस स्टडी आएगा, काउंटर ऑफर के ऊपर एक केस स्टडी आएगा। हम ना पहले इसको बोले 5,000 में खरीदोगे क्या, ऑफरी बोला 4,000 में बेचोगे क्या, काउंटर ऑफर, बढ़िया बात। लेकिन फिर ना ऑफरी बोल रहे
जब ऑफर मना कर दिया ना, नहीं 4,000 में नहीं बेचेंगे, फिर बोलता है ठीक है चलो 5,000 में बेचो, फिर हम मना कर सकते हैं? वापस से सुन लो, वापस से सुन लो। हम बोले मेरा मोबाइल 5,000 में खरीदेंगे क्या? ये बोला 4,000 में बेचोगे क्या? तो द मोमेंट ही गिव्स अ काउंटर ऑफर ऑफ 4,000 बाय 5,000 वाला ऑफर इज लैप। फिर हम बोले हट कंगाली, ऐसे ही दाम कम करके बोले इसको और दाम कम करना है, हट। बोला अच्छा अच्छा ठीक है 5,000 में बेच दो। नहीं हट, आई डोंट डील विथ यू पीपल। बोला तुम्हारी बात तो रख रहे हैं, 5,000 तुम्हारा नहीं, मन बदल गया। बोला नहीं तेरे को बेचना पड़ेगा, तुम 5,000 बोला था। तो तुम 4,000 बोला ना, मेरा 5,000 वाला ऑफर लैप्स। याद करो बार्गेनिंग वाला एग्जाम्पल। मान लो एक हम लोग शॉपकीपर से बार्गेन कर रहे हैं, भगवान शॉपकीपर बोला 5,000 रुपया, हम लोग 4,000 में बेचो। फिर हम लोग जाने का एक्टिंग करते हैं, फिर वो नहीं बुलाया तो हम लोग खुद ही पहुंच जाते हैं कि चलो तुम्हारा बात रख लेते हैं। बोला भाग गया था, तुम्हारा बात रख लेते हैं। क्या वो ऐसा कर सकता है? क्योंकि द मोमेंट ही सेड 5,000, द मोमेंट वी गेव हिम एन ऑफर ऑफ 4,000, काउंटर ऑफर दिया तो ऑफर क्या हो गया? लैप्स, पक्का। फिर हम लोग उसको बोले चलो ठीक है चलो तुम्हारा बात रखा 5,000, तो हम लोग वापस से ऑफर दे रहे हैं, फिर वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा दुकान वाले का मर्जी। तो ऑफर लैप्स हो जाता है। जब ऑफर में कोई भी मर जाता है, एक बच्चा बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट में तो आप सिखाए थे कॉन्ट्रैक्ट लैप्स नहीं होता, मैंने से लीगल अलग है। अगर हाँ बोल करके मरा, जो वादा किया वो मरने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। बट हम इसको ऑफर दिए 5,000 मेरा मोबाइल खरीदोगे, हार्ट अटैक से मर गया तो मेरा ऑफर खत्म हो गया, लैप्स हो गया। बट ये बोला हाँ, तब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, परफॉर्म करना पड़ेगा। टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है, समझ आ रहा है? हार्ट अटैक कब आया? हाँ बोलने के बाद आया तो परफॉर्म करना पड़ेगा, हाँ बोलने के पहले तब लैप्स, पक्का। तो ऑफरर या ऑफरी में से कोई भी मर गया, या उसने रिजेक्ट कर दिया, या काउंटर ऑफर, प्रेस्क्राइब मोड या प्रेस्क्राइब टाइम, प्रेस्क्राइब मोड या प्रेस्क्राइब टाइम में उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और अगर कोई मोड या टाइम प्रेस्क्राइब नहीं था तो रीजनेबल मोड रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया, फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन। क्या ऑफर कंडीशन हो सकता है? एक्सेप्टेंस कंडीशन नहीं हो सकता। ऑफर तो कंडीशन हो सकता है, उसने कंडीशन नहीं निभाया। 6 केस बता दो, 6 केस कब ऑफर लैप्स हो जाएगा? ऑफर या ऑफरी में से कोई भी मर गया, रिजेक्ट कर दिया, काउंटर ऑफर, फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन, या प्रेस्क्राइब मोड या प्रेस्क्राइब टाइम, या रीजनेबल मोड रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक्सेप्टेंस में ओपिनियन नंबर 9 सेक्शन 2 क्लॉज नंबर, ये तो अभी पढ़ चुके हैं। लेट कमर वाले बच्चे नहीं पढ़े, बाद बाकी लोग बच्चे पढ़ चुके होंगे, आज ही पढ़ाए थे। When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal once accepted becomes a promise. Rules of valid acceptance. Absolute मतलब unconditional, because acceptance cannot be conditional. Acceptance must be unconditional. Communicated to offerer. अरे offeree will have to communicate the acceptance to offerer in prescribed mode, prescribed time. Silence is not an acceptance. Mere silence is not an acceptance. Mere silence on the part of offeree is not an acceptance. Feldhaus versus Bindley. Feldhaus versus Bindley. Acceptance conduct से भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट पेज में आ गए थे हम लोग। When the parties are face to face, face to face, मुंह to मुंह, मोबाइल खरीदेगा, हाँ ना, अब नहीं हो सकता, हाँ बोलते ही एक्सेप्टेंस हो गया, हाँ ना तो हाँ, नहीं समझ में आया, हाँ के बंदा नहीं चलेगा। सो व्हेन द पार्टीज आर फेस टू फेस, इंस्टेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, नो रिवोकेशन इज पॉसिबल, पक्का। लेकिन जब हम लोग दोनों दूर दूर हैं क्या, चिट्ठी खेलते हैं क्या, तब रिवोकेशन पॉसिबल है। चलो आओ बात कर लेते हैं पोस्ट का। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट 1000 बार सिखा चुके हैं। ऑफर स्टार्ट व्हेन द लेटर इज पोस्टेड कि रीचेस ऑफ। ऑफर स्टार्ट व्हेन इट इज पोस्टेड कि रीचेस ऑफ। ऑफरर चाहे तो अपना ऑफर कैंसिल कर सकता है, ऑफरर चाहे तो अपना ऑफर कैंसिल कर सकता है। ऑफरी के एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले, ऑफर स्टार्ट्स व्हेन इट इज पोस्टेड कि रीचेस ऑफरी। ऑफर स्टार्ट व्हेन इट रीचेस ऑफरी। ऑफरर कैन कैंसिल द ऑफर before offeree posts his acceptance. Once offeree posts his acceptance, offerer becomes bound. But offeree does not become bound.
ऑफरी ने अभी पोस्ट किया है क्या एक्सेप्टेंस? ऑफरी अपना पोस्ट किया हुआ एक्सेप्टेंस, ऑफरी जो एक्सेप्टेंस पोस्ट किया है उसको कैंसिल कर सकता है? हाँ कर सकता है, बिफोर इट रीचेस अ ऑफरर। ऑफरी जैसे ही पोस्ट कर दिया ना एक्सेप्टेंस, अब ऑफरर अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता, बट ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है बिफोर द एक्सेप्टेंस रीचेस अ ऑफरर। अगर ना पहले आ गया तो ना, हाँ पहले आ गया तो हाँ, दोनों लेटर साथ में आया, ऑफरर जो पहले पढ़ेगा वो माना जाएगा। पक्का? फिर अपने आ गए थे पे नंबर 12 में। स्टैंडिंग ऑफर पढ़ चुके क्या? कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट अभी पढ़ाए क्या? टेलीफोन कन्हैया लाल वर्सेस दिनेश चंद्रा। इफ द लाइन गेट्स डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन इट हैज टू रीस्टार्ट ऑल ओवर अगेन। क्योंकि हम लोग का गंदा आदत है, सामने वाला क्या किया पता है? मेरे साथ मजाक किया सामने वाला, इसको पता है हम फोन उठा करके बोलते हैं हाँ बोल, ये क्या किया पता है? मेरे को ऑफर देकर के काट दिया, फिर फोन मिला है, हाँ बोले हाँ बोल, बोला क्या बोले? हाँ तो बोल दिया। पिछला लाइन में ऑफर दिए थे, नया लाइन में अभी हाँ बोल दिया, एक्सेप्टेंस हो गया। ऐसे नहीं होता, अगर लाइन बीच में क्या हो जाए तो फिर से ऑफर एक्सेप्टेंस दोहराना होगा। कन्हैया लाल वर्सेस दिनेश चंद्र। पेज नंबर 13 में आओ। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। कोई भी केस स्टडी आएगा कंसिडरेशन का, सबसे पहले उसका क्या लिखोगे? डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, when at the desire of the promiser, promisee or any other person has done something or abstained from doing something, does something or abstains from doing something, promises to do something or abstains from doing something, such an act or abstinence is called consideration for the promise. Past, present, future. When at the desire of the promiser, the promisee, when at the desire of the promiser, promisee or any other person has done something or abstained from doing something, does something or abstains from doing something, promises to do something or abstains from doing something, such an act or abstinence is called consideration for the promise. Consideration can move from one person to another. चेन्नैया वर्सेस रमैया। चेन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था? माँ ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी बेचा था ये बोल करके कि मामा को रुपया देते रहना। मामा जो है क्या था? स्ट्रेंजर। पक्का? बेटी ने मामा को रुपया देने से मना कर दिया, क्या देना पड़ेगा? Because consideration can move from one person to another. I repeat, contract was entered between an old lady and a daughter. Old lady sold her house to the daughter that the consideration should be paid to the uncle. Daughter refused to pay the consideration to the uncle, saying that uncle is not a party. Although uncle is not a, but consideration can move from one person to another. There can be a stranger to consideration. There can be a stranger to consideration. मैं अपना consideration किसी और को दिलवा सकता हूँ क्या? There can always be a stranger to consideration because it can move from one person to another. Consideration must be real कि not real? हाँ? Real and competent. Real भी होना चाहिए, competent भी होना चाहिए. It should not be unreal, incompetent, immoral, opposed to public policy. Consideration should not be immoral or opposed to public policy. देखते चलो consideration का legal requirement. Promises desire क्या? Moves at the desire of the promiser from promisee or other. चेन्नैया वर्सेस executed मतलब क्या? Present. Executed मतलब present. Executory मतलब future. Past consideration is not a consideration in English law. Indian law में 3 होता है, past, present, future. Present का दूसरा नाम executed, future का दूसरा नाम executed. Past, present, future. Present is also called executed, future is also called executory. Adequacy दिखाई दे रहा है क्या? Consideration में भी adequate also, consideration में भी adequate also, inadequate also. Adequacy समझ में आया? It can be adequate also and inadequate also. Maybe adequate also. We cannot question the adequacy of consideration. Consideration can be adequate also, inadequate also. हम अपना मोबाइल 1 रुपया में बेच सकते हैं क्या? हाँ. But it must be legally performed, not unlawful, immoral or opposed to public policy. चाहे consideration adequate हो, चाहे inadequate होना चाहिए, because no consideration नहीं. But इसका 5 exception था. Party standing in near relation to each other, out of natural love and affection, transfer property. बोलो पूरा line. Party standing in near relation to each other, out of natural love and affection, transfer property to each other. Completed gift. Completed gift मतलब होता है gift given through gift deed. Payment of voluntary service. ये रैंक ले आया, हम इसको 25,000 रुपया दे दिए, या ये डांस करने लगा, हम इसको चेन खोल करके दे दिए. Payment of voluntary service. Payment of time barred debt. ऐसा डेट जो मर चुका था फिर भी मैंने इसको चुकाया. Payment of time barred debt. Creation of agency. 5 केस में कंसिडरेशन का दरकार नहीं है. बताओ क्या क्या? Natural love and affection. Completed gift.
पेमेंट ऑफ वॉलेंटरी सर्विस, पेमेंट ऑफ टाइम बार, डेट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। फिर दोस्तों हम लोग आ गए थे पेज नंबर 15, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अच्छा याद है, व्हेन अ पार्टी इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म and we promise to give him more, that more is not the consideration. Same ka ऊंचा था, वो ऊंचा था is not a consideration. Silk versus Marek, पेज नंबर 16 में आ गए थे। Can there be a stranger to consideration? There can be a stranger to, but there cannot be a stranger to contract because of privity of contract. As per the doctrine of privity of contract, there is a doctrine of privity of contract. That contract is a private affair between the parties. Stranger cannot sue. We cannot sue the stranger. Parties cannot sue. Parties cannot sue stranger. Stranger cannot sue parties. Parties can sue each other. There cannot be a stranger to contract. मतलब हम लोग आउटसाइडर को सू नहीं कर सकते, आउटसाइडर हम लोग को सू, बट इसका बहुत सारा क्या है एक्सेप्शन। बेनिफिशियरी भले क्या रहता है आउटसाइडर, बेनिफिशियरी ऑल्दो क्या वो हम लोग को सू कर सकता है? पक्का बेनिफिशियरी ऑल्दो आउटसाइडर हम लोग को सू कर सकता है। फिर दूसरा एक्सेप्शन का बात हुआ था फैमिली सेटलमेंट। 3 बच्चा था, 2 बच्चा में बांट दिए, तीसरा बच्चा को बुलाए नहीं, क्या वो सू कर सकता है? तो जब फैमिली सेटलमेंट में किसी को इग्नोर कर दिया गया वो सू। फीमेल मैरिज इन HUF, सारे मर्द मेंबर क्या रहेंगे? लायबल। फिर असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है क्या? अरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये कॉन्ट्रैक्ट करके मर गया, क्या हम लोग इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सू कर सकते हैं? भले वो क्या है आउटसाइडर। फिर स्टॉपर लायबिलिटी एक्नॉलेजमेंट, याद है हम इसको फोन में झाड़ रहे थे, पैसा देगा कि नहीं देगा बे? इसकी गर्लफ्रेंड भी कॉन्फ्रेंस में थी, बोला आप मेरे ऐसे बात नहीं करेंगे, मेरे डैड से आप ऐसे बात नहीं करेंगे। हाँ बोला पैसा तू देगी? बोला हाँ ठीक है भैया। स्ट्रेंजर खुद ही बोल रहा है कि हमको सू करो तो हम लोग करेंगे सू, मतलब वो उसने लायबिलिटी को क्या किया है? एक्नॉलेज। बस वहीं तक। और याद है एजेंट के केस में कॉन्ट्रैक्ट भले कौन कर रहा है? एजेंट, लायबल तो प्रिंसिपल होगा। फिर 5 एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं क्या? पेज नंबर 18। लीगल कैपेसिटी दिखाई दिया क्या? 3 जन लीगली केपेबल नहीं है। माइनर, लुनेटिक, पर्सन डिस्क्वालिफाइड। माइनर इज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1835। माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट इवन अटेन्ड द एज 18 इयर्स, 18 साल का नहीं हुआ है। पर्सन हु लिव्स अंडर कोर्ट ऑफ वॉचशिप नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 21। कोर्ट ऑफ वॉचशिप मतलब होता है बाल सुधार गृह, या तो उसका इस दुनिया में कोई नहीं है या बचपन में कर्मकांड कर दिया, चक्कू को घोप दिया, उसको सुधारा जाएगा, तो बाल सुधार गृह में रखा जाता है। माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट इवन अटेन्ड द एज ऑफ 18 years but he lives under the court of wardship, he is a minor till the age of 21 years. Held in the case of Mohiri Bibi versus Dharmodas Ghosh, all agreements of minor are void. पक्का? उसमें क्या होता? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में लोन दिया गया था माइनर को। माइनर को क्या दिया गया था? लोन दिया गया था, वो खर्चा कर दिया। क्या हम लोग माइनर से रुपया ले सकते हैं? नहीं ले सकते। So if a minor was given a loan but he spent the money, he cannot be sued. पक्का? And he cannot be forced to return the money also. लेकिन all agreements of minor are void. बिल्कुल सही। Minus all agreement are void ab initio, यानी void from the beginning, यानी void agreement. Minus all agreement are void ab initio, void from the beginning, यानी void agreement. Minor is never personally liable, but is private asset. Private asset मतलब उसका खुद का बैंक बैलेंस। Private asset, minor का खुद का property bank balance is liable for necessary. Necessary is a broader term which include necessity, food, clothing, shelter, education, legal expenses, food, clothing, shelter, education, legal expenses, other things which depend on standard of living. So minor's private estate is liable for necessaries. के अंदर आता है necessity, 5 चीज, food, clothing, shelter, education, legal expense, other things which depend on standard of living. अब एग्जाम में अगर केस आया, हम पहले भी बता रखे, मैंने इस माइनर को मान लो लोन दिया इसका स्कूल फीस भरने के लिए, कॉलेज फीस भरने के लिए, एजुकेशन के लिए, क्या उसके लिए ये लायबल रहेगा? क्या हम रुपया मांग सकते हैं? बिकॉज इट फॉल्स अंडर नेसेसरीज। पक्का? प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई। रेटिफिकेशन मतलब बचपन में किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड है, तो क्या 18 साल का जब होगा वो पुराना वाला वैलिड हो जाएगा? बचपन में किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड है, बड़ा होकर के वैलिड नहीं होगा। रेटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई। पक्का? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माइनर के खिलाफ हो सकता है? मार मार के परफॉर्म करवाएंगे क्या? नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अच्छा, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। गार्जियन से 2 पॉइंट था। माइनस गार्जियन कैन एंटर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर।
Minors guardian can enter the contract for the minor. Can restrain the marriage of minor. Minor is liable for torts. Torts मतलब civil wrong. किसी को जाकर के वो दाती काट दिया, ये सब के लिए liable है. But not those civil wrong which arise out of contractual liability. Minor is liable for torts, but not those torts which arise out of contract. पक्का? Restitution बोलो. Restitution क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, void, तो कम से कम जो बेनिफिट हम तुमको दिया वो रिस्टोर कर दो. Restitution does not apply. बोलो. Restitution does not apply in case of minor. In case of minor, restitution does not. जैसे हम इसको लोन दिए, एजुकेशन का नहीं, ऐसे ही लोन दिए, ठीक है. अब बाद में पता चले ये क्या हो गया, void, तो मेरा कम से कम पैसा तो वापस कर दो. वही तो नहीं करेंगे. Restitution मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स. बोलो. इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ माइनर. माइनर उड़ा करके खत्म कर देगा. जैसे मान लो सोनू निगम को हम 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे कि आकर के नाच गाना करेगा, गला खराब हो गया, वॉइड हो गया, क्या वो 1 लाख रुपए वापस करेगा? इसी को क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन. कि ठीक है बाबा, सोनू निगम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जा रहा है, मत गा, बट मेरा एडवांस जो तेरे को दिया था वो तो वापस कर. लेकिन माइनर वापस करेगा कि उड़ा देगा? हाँ, अगर प्रॉपर्टी हुआ तो रिस्टोर, बट उड़ा दिया तो क्या हम लोग उसे मान सकते हैं? नहीं. सोनू निगम का गला खराब हो गया, 1 लाख दे, बोला उड़ा दिया, मारेंगे बेटा, दे. Are you through with this? पक्का. माइनर प्रिंसिपल बन सकता है कि एजेंट बन सकता है? एजेंट, बिकॉज एजेंट इज नॉट लायबल, प्रिंसिपल इज लायबल. वी डोंट वांट माइनर टू बी लायबल, सो अलाउ माइनर टू बिकम एजेंट. सारा हो चुका. माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी. प्रिंसिपल ऑफ इस्टॉबल. झूठ बोल सकता है माइनर? हाँ. नॉर्मली याद है पार्टनरशिप में अपने सीखे थे, जो झूठ बोलेगा भुगतेगा. अगर एक इंसान झूठ बोलता है हम पार्टनर है, एक्चुअल में वो पार्टनर, बट वो जिसको झूठ बोला ना पार्टनर है, चल अब तो भुगत. तुम झूठ बोला ना पार्टनर है, भुगत. नहीं समझा. बट माइनर अगर बोला हम मेजर है तो भुगतेगा क्या? नहीं, बच्चा है जी, झूठ बोल सकता है. फिर लुनेटिक और अनसाउंड माइंड सेम एज माइनर था. परमानेंट लुनेटिक. परमानेंट लुनेटिक. पक्का. और बहुत सारे ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन लोग क्या रहते हैं, खाली लुनेटिक. दे आर नॉट इडियट. सुनो, इसको दौरा पड़ता है, 4 बजे के बाद ये पागल होता है, उसके पहले ठीक रहता है. तो अगर 4 बजे के पहले कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड रहेगा ना रे बाबा, बट 4 बजे का दौरा पड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड. नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज नंबर 20. अदर पर्सन में एलियन एनिमी दिखाई दे रहा है क्या? जादू जादू जादू. याद करो ये सब, बचपना याद करो अपना. कौन है हम लोग का एलियन एनिमी? कोई नहीं. एलियन एनिमी मींस पर्संस ऑफ द कंट्री विथ व्हिच इंडिया इज एट वॉर. राइट नाउ वी आर हैविंग नो एलियन एनिमी. ओके. अच्छा, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं? वॉइड. बट सीजी से परमिशन लेकर के कर सकते हैं, आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी. फॉरेन सॉवरेन याद आ रहा है? फॉरेन गवर्नमेंट. हम लोग का इंडियन सिटीजन लोग क्या फॉरेन सरकार के, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एंड कन्विक्ट. कन्विक्ट मतलब जो जेल में सजा काट रहा है, जो जेल में सजा काट रहा है उसको कन्विक्ट बोलते हैं. हम लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कन्विक्ट एंटर कर सकता है आफ्टर टिकट ऑफ लीव, परमिशन लेकर के. परमिशन इज कॉल्ड टिकट ऑफ लीव. ठीक है, टिकट ऑफ लीव मतलब कोर्ट का परमिशन. प्रोफेशनल पर्सन इन इंग्लैंड, डॉक्टर, लॉयर, टीचर लोग वहां का, इंग्लैंड का सीओ नहीं कर सकते. नेक्स्ट पेज में आ गए थे. कोर्शन से लेकर के मिसअप्रिसिएशन 15, 16, 17, 18. कोर्शन सेक्शन नंबर 15. कोर्शन का सेक्शन 15. अनड्यू इन्फ्लुएंस 16. फ्रॉड 17. मिसअप्रिसिएशन 18. सबसे पहले कोर्शन सेक्शन नंबर 15. गजब डेफिनेशन है कोर्शन का. कमिटिंग. कर डाले रे, कर डाले शिवाजी. चक्कू घुसा करके बोलते हैं साइन कर. इसको क्या बोलते हैं? कमिटिंग. या फिर हम ना खाली बंदूक दिखाएं, कुछ किए थोड़ी ना है. हम कुछ किए थोड़ी ना, खाली बंदूक माथे पे बीचों बीच ही तो डाले हैं, कुछ किए तो चलाए थोड़ी ना है. थ्रेटनिंग टू कमिट हुआ, ये भी कोर्शन है. आइदर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड. और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन. डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. प्रिजुडिस टू द पर्सन, उसके खिलाफ, उस पर्सन के इंटरेस्ट के खिलाफ. तो 4 चीज, कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट, डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी प्रिजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नोन एज व्हाट? कोercion. अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? सुपीरियर पार्टी मिसयूजेस द डोमिनेंट पोजीशन
सुपीरियर पार्टी मिसयूजेस द डोमिनेंट पोजीशन टू मेक द वीकर पार्टी एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। अरे बाबा जी, आप हिमालयस पे क्यों नहीं चली जा रही हैं? हिमालयस पे ले जाकर के इनको छोड़ देना चाहिए। नॉनसेंस। डोमिनेंट पोजीशन एक लड़की है जो मतलब ऑलमोस्ट बाबा जी बन चुकी है, कोई भी बस इसको हिमालय पे ला जा करके छोड़ दे, ऐसे बैठी है और हम एकदम फायरिंग ऑल सिलेंडर्स आउट, सांस भी कम कम ले रहे हैं ताकि फटाफट वर्ड्स निकले। बड़े मोह माया है। ऐसे बच्चे बोलते बाबा जी, जाइए हिमालय में घंटी बजाइए। अनड्यू इन्फ्लुएंस। सुपीरियर पार्टी misuses the dominant position to influence a weaker party to make him enter the contract. Superior party misuses the dominant position to make the weaker party enter the contract. चाहे coercion हो, चाहे undue influence हो, contract is voidable at the option of agree party. Undue influence का example, teacher student, tree stand follower. Okay. ट्रांजैक्शन में पर्दा नशीन वुमन दिखाई दे रहा है क्या? पर्दा नशीन क्या है? कंप्लीट सेक्लूशन। द वुमन हु डज नॉट गो टू द मार्केट टू परचेज अ वेजिटेबल, डू नॉट टॉक टू मेन अदर देन द मेन ऑफ हर ओन फैमिली, डज नॉट गो टू कोर्ट टू गिव एविडेंसेस, रिगार्डेड एज पर्दा नशीन। उसको सोसाइटी का कोई परख, उस माइनर की तरह ही है, भोली वाली बच्ची है, अरे भोली सी सूरज, दूर खड़े शर्माए, तो उसको बोलते हैं पर्दा नशीन। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, पक्का वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ऐसे लोगों को बुद्धि उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट मत कर, नहीं तो डैश बनेगा, वॉइड होगा। बात हो चुका है क्या? फिर फ्रॉड दिखाई दे रहा है, पूरा लिखवा दिए थे यार फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड का सेक्शन नंबर कौन सा? 17। मिसरिप्रेजेंटेशन का सेक्शन 18। फ्रॉड दो प्रकार के होते हैं, जानबूझ करके झूठ बोला, फ्रॉड, पता ही नहीं है सच क्या झूठ क्या, फिर भी मुंह खोल करके बोला। knowingly making a false representation, fraud, recklessly fraud, दोनों फ्रॉड है। मेरे को पता ही नहीं है क्या बोलना है, फिर भी हम बोल दिए फ्रॉड है। जान के झूठ बोलना फ्रॉड, पता ही नहीं था क्या बोलना, फिर भी बोल दिए फ्रॉड। ऑनेस्ट बिलीफ इन ट्रूथ, पक्का। So when a party makes a representation, when a party makes a wrong representation, knowingly that it is wrong, when a party makes a false representation knowingly that it is false, or recklessly without caring what is true or what is false, and the other party enters a contract on the basis, याद आ रहा है, the other party enters a contract on the basis of that false representation and suffers some kind of loss, this is called fraud. बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ अच्छे घोड़े पाए जाते हैं, सब झूठ था, मेरे को पता था सब झूठ हम लिख रहे हैं, यहाँ अच्छे घोड़े पाए जाते हैं, सब डैश घोड़े, पागल घोड़े। ये बिना बोर्ड पढ़े घोड़ा खरीद लिया, इसके साथ फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बिकॉज मैंने झूठ बोला था, हाँ, बट मेरा झूठ इस तक पहुंचा नहीं। He did not enter the contract on the basis of the false representation, तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जब हम जो बोले थे वो समय का सच था, सच बदल गया, सच बदल जाता है। तुम्हारे मम्मी पापा एडमिशन करवाने आए थे, बोले थे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ता लिखता है, वो उस समय का सच था, झूठ नहीं था, सच बदल गया और अच्छे से पढ़ने लगे। हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? So when a person recklessly or knowingly fraud, honest belief in truth, चाहे फ्रॉड हो चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन हो, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। फ्रॉड में जेल है, मिसरिप्रेजेंटेशन में जेल नहीं है, बट वॉइडेबल दोनों में है। पेज नंबर 23 क्वेश्चन एंड यूनिवर्स का डिफरेंसेस पढ़ चुके थे क्या? फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन का पढ़ चुके थे क्या? पेज 24 मिस्टेक हम लास्ट क्लास पढ़ा चुके थे। हे भगवान, फिर से एक बार मिस्टेक पढ़ा दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। मिस्टेक दो प्रकार के होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। When I say mistake of law only means mistake of Indian law. Mistake of law means mistake of Indian law. Mistake of foreign law या बाद बाकी मिस्टेक जो है ना वो फैक्ट का मिस्टेक होता है, फैक्ट का। खाली मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ is a mistake of law. And ignorance of law is no excuse. Ignorantia juris non excusata. Ignorantia juris non excusata. Ignorance of law is not an excuse. इसका मतलब अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, यानी मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है, चाहे एक जन का हो चाहे दोनों जन का हो, नहीं माना जाएगा मिस्टेक है। हट, ऐसे तो सब बोलेंगे हमको कानून नहीं पता था,
गांव का कोई गवारा करके इसको चक्कू घोप दिया, बोला हमको कानून नहीं पता था, हमको फांसी नहीं होना चाहिए, हम देखे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, पॉपुलेशन इतना है, मार दिए थानोस। क्या बोले सला सोला हो गया। जिन लोग अवेंजर्स देखा होगा, किन लोग देखा दोनों? अरे बाप रे, हिंदी पिक्चर नहीं देखते हो आजकल? हिंदी में देखा होगा नॉनसेंस लोग। हाँ सुनो, ignorance of law is no excuse. So if it is unilateral mistake or bilateral mistake of law, it does not affect the contract. The contract will remain valid. Mistake of law is not an excuse. मेरा मिस्टेक हुआ, दोनों का मिस्टेक हुआ, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करूंगा आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता था। अगर मेरे को पता होता कि कोर्ट कचहरी का मामला है, मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, नहीं जाने देंगे। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कॉन्ट्रैक्ट विल बी अफेक्टेड कि नॉट अफेक्टेड? नॉट अफेक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन whether it be unilateral mistake of law or bilateral mistake of law, contract remains valid. Now comes mistake of fact. Mistake of fact. अगर दोनों को ही फैक्ट समझने में गड़बड़ हो गया, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तब तो वॉइड हो जाएगा। मेरे को लग रहा है घोड़ा जिंदा है, इसको भी लग रहा है घोड़ा जिंदा है, दोनों का गलतफहमी है, घोड़ा तो मर चुका था, मेरा भी गलती हुआ, इससे भी गलती हुआ। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हम लोग दोनों का ही गलती हो गया कि घोड़ा जिंदा है, जबकि घोड़ा तो मर चुका था, पर दोनों का गलती हो। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ये होता है बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जांपल दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या मेरे को लग रहा था सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको भी लग रहा है सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट, पर सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, वॉइड। पक्का। क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर का हम एग्जांपल देते हैं, हेंकल वर्सेस पेप। बोलो, हेंकल वर्सेस पेप। मैंने राइफल्स ऑर्डर किया, याद करो, ऐसा कुछ बोले थे, मैंने सामने वाला से राइफल्स ऑर्डर, मैंने सामने वाले को बोला, अरे सामने वाला, मेरे को ना तुम ना अपना राइफल बेचने का कोटेशन दे, कितना में बेचेगा? आई कैन ऑर्डर एज मेनी एज 50 राइफल, इफ आई लाइक द कोटेशन आई कैन ऑर्डर एज मेनी एज 50। इसने मेरे को कोटेशन भेजा, बहुत महंगा था, लेकिन राइफल अच्छा था, बट महंगा बहुत था। उस समय ना टेलीग्राम चलता था, टेलीग्राम, अभी भी टेलीग्राम चलता है मोबाइल वाला, बट उस समय फिजिकल टेलीग्राम चलता था, पोस्ट। तो मैंने पोस्टमैन को जाकर के बोला, पोस्टमास्टर टेलीग्राम लिख दीजिए, सेंड 3 राइफल। क्या? पोस्टमास्टर बूढ़ा था, 3 की जगह लिख दिया D, मैं मंगवाया 3, वो लिख दिया सेंड D राइफल, मेरे को लग रहा है 3। सामने वाला को टेलीग्राम पहुंचा सेंड D राइफल, उसको कितना लग रहा होगा? 50, क्योंकि शुरू में हम बोले थे आई कैन ऑर्डर एज मेनी एज 50 राइफल, बट मेरे को महंगा लगा इसलिए हम बोले सेंड 3 राइफल। उसके पास पहुंचा सेंड द राइफल, उसको कितना लग रहा है? 50, मेरे को कितना लग रहा है? 3। बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। किसी को क्वांटिटी एग्जैक्टली नहीं पता, किसी को सही क्वांटिटी नहीं पता, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कि वॉइड? वॉइड। आर वी थ्रू विद दिस? श्योर, वेरी श्योर, वेरी श्योर। तो अगर मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी मिस्टेक का ये है, केवल बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। Moral of the story is only bilateral mistake of fact will make the contract void. Are we through with this? Unilateral mistake of fact है। हाँ बोला, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट का 251 पेज में आओ, 251 पेज का 21वां नंबर पॉइंट का 3rd लाइन, 251 पेज में 21वां नंबर पॉइंट का 3rd लाइन में देखो ये बात लिखा हुआ। बोले इतना पढ़ता कौन है? इतना नहीं पढ़े थे, इसको फैक्ट नहीं पता था, मेरे को पता था। यूनिलैटरल है कि बायलैटरल है? उसको नहीं, यूनिलैटरल, उसका गलती है ना रे, नहीं समझ में आया। बैंक तो तेरे से कागज साइन करवा रखा था, तुम बिना पढ़े साइन किया, अंधा था, धोखे से साइन करवाए, हाँ? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, भागने नहीं देंगे। बोला बाबू हम पढ़े नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। आर वी थ्रू विद दिस? पूरा मिस्टेक सेक्शन 20 शुरू से लेकर के लास्ट तक ब्रैकेट लगा दो, लगाया हुआ है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक। नेक्स्ट पेज, लॉफुल ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्या? लॉफुल। माना जाएगा अनलॉफुल है, कब माना जाएगा अनलॉफुल है? व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ मना कर रहा है तो अनलॉफुल। व्हेन इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ,
causes injury, causes injury, causes injury to person or property. बोलो पूरा, causes injury to person or property. Immoral, opposed to public policy. पक्का? Fraudulent, fraudulent, immoral and opposed to public policy. देखो छठो, forbidden by law, defeats the provision of law. Fraudulent, involves injury to person or property. Immoral and opposed to public policy. फिर नीचे में अपने आ गए थे, याद है, opposed to public policy. एक एक करके फिर से समझा देंगे सर opposed to public policy. खाली हेडिंग याद करना है, इसका अंदर का हम जो पढ़ा रहे हैं खाली वो समझ लेना है. Agreement of trading with, agreement of trading with enemy. समझ में आया? ट्रेडिंग विद एनिमी ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अपोज टू क्या है? पब्लिक पॉलिसी. एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी मतलब विच एनिमी? एलियन एनिमी. तुम एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये अपोज टू क्या है? पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, एलियन एनिमी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एग्रीमेंट टू कमिट, सुनना, उसका बटवा चुराना है, जो बाथरूम जाएगा उसका चोरी कर लेना. ये एग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, ये सब अपोज टू क्या है? पब्लिक पॉलिसी. इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है क्या? इंटरफेरेंस विद जस्टिस दो प्रकार के होते हैं. देखो, इंटरफेरेंस विद जस्टिस दिखाई दिया. सबसे पहले इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस दिखाई दे रहा है. इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जज को पैसे खिला देना है भगवान, ब्राइबिंग जज. बोलो, देखो वहां पर हम हाईलाइट भी करवा रखे होंगे. इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस दिखाई दिया क्या? ऑफ एनी काइंड विद जजेस और ऑफिसर, मतलब आप जज को ब्राइब कर दिए. ये सब अपोज टू क्या है? पब्लिक पॉलिसी. पक्का? अब मान लो हम लोग जज को 1 करोड़ दे दिए कि मेरे को जिताना, जज मेरे को नहीं जिताया, केस कर देंगे. 1 करोड़ पहुंचा दिए थे इसको, अब तुम चल दूसरा जज के पास. दूसरा जज इस जज को 1 करोड़ दिए थे, फिर भी हमको नहीं जिताया, बोला दोनों को डालो जेल में. ये सब अपोज टू क्या है? पब्लिक पॉलिसी. आप जज को ब्राइब नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस विद जस्टिस. क्या बोलते बताओ ना? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन दिखाई दे रहा है क्या? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? वी कैन नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी. वी कैन नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी. इसका मतलब सुन, मैंने गलत किया तेरे साथ, मैं मानता हूं मैंने तेरे साथ गलत किया, 5 लाख दूंगा, वादा कर मेरे ऊपर केस नहीं करेगा. आप ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये इलीगल है. नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? मतलब वी कैन नॉट ट्रेड आउट ऑफ इट ना. मैंने क्राइम कमिट किया, सामने वाला मेरे को सू नहीं करे, अब मैं उसके लिए उसको पैसा दे रहा हूं. सामने वाला मेरे ऊपर, उसके लिए मैं उसको पैसा दे रहा हूं. आई हैव कमिटेड अ, नो वी कैन नॉट ट्रेड आउट ऑफ अ क्राइम. ये अपना राइट टू स्यू बेच नहीं सकता. बोलो पक्का? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, और एक बार समझो, और एक बार वापस से देखो, अंडरलाइन कर रखे हैं. इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट इफ अ पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम ही मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड. नहीं तो क्या है, आज मैंने तेरे साथ किया, कल मैं उसके साथ भी करूंगा अगर मेरे को पनिशमेंट नहीं मिला. नहीं समझ में आया? तो ये बात तेरा नहीं है, ये बात पब्लिक है. तेरे साथ जो हुआ, तुम 5 लाख रुपया लेकर के बैठ गया, बट इससे तो फिर मेरे को और बढ़ावा मिल जाएगा. तो वी शुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड इफ वी हैव कमिटेड अ क्राइम. वी कैन नॉट ट्रेड आउट ऑफ इट. पक्का? तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बना लिए कि मेरे को स्यू नहीं करेगा 5 लाख रुपया का, फिर भी मेरे को स्यू कर सकता है क्या? हाँ. वंस मोर आई विल एक्सप्लेन. मक्खन की तरह क्लियर है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. फिर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ, क्या दिखाई दे रहा है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. इसमें एग्रीमेंट रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में देखो, हम पहले बताए थे एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन्फोर्समेंट ऑफ राइट दिखाई दे रहा है क्या? सुनो इसमें क्या हुआ, इस बार क्या हुआ? एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग. बोलो पूरा, एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन लीगल प्रोसीडिंग. इस बार मैंने, जब हम लोग दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटा सा क्लॉज डाल दिए. फ्यूचर में मान लो फ्यूचर में अगर हमने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को सू नहीं कर सकता. ये पॉइंट वॉइड है. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा रे बाबा, खाली ये पॉइंट वॉइड होगा. नहीं समझ में आया? क्या फर्क है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में और एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में? कोई भी कुछ जोड़कर बताओ. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में क्राइम हो चुका, नहीं समझ आया? क्राइम होने के बाद हम लोग बोल रहे हैं 5 लाख दे देंगे, चलना लेना, पैसा बहुत है, लेना 5 लाख, केस मत करना.
ये स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन है, वॉइड है। और एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेनमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है बताओ? शुरू में एग्रीमेंट कर दिए, हमसे ब्रीच हो गया तो मेरे को सीओ नहीं करेगा, या फिर दूसरा लॉयर को भी पैसा दे दिए कि तुम जो है ना सामने वाला का केस नहीं लड़ेगा। ये सब क्या होता है? एग्रीमेंट रेस्ट्रेनमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। बोलो, फिर बढ़ो नेक्स्ट। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल दिख रहा है क्या? गवर्नमेंट का जॉब खरीदा बेची, गवर्नमेंट का टाइटल खरीदा बेची, बोलो दोनों। गवर्नमेंट का जॉब का खरीदा बेची, गवर्नमेंट का टाइटल का खरीदा बेची, वॉइड है। आज मान लो हम प्रेसिडेंट बन गए, अब हम तो प्रेसिडेंट बन गए, अरे तेरे को बनना है, हम अपना पोस्ट तेरे को बेच देंगे, 1000 करोड़ दे। नहीं समझ में आया? तो आप ये सब नहीं कर सकते। या आप गवर्नमेंट को पैसा दे करके, पैसा खिला करके बोल सकते मेरे को पद्म भूषण दो, पद्म भूषण 50 करोड़ पद्म भूषण। तो ये सब खरीदा बेची नहीं हो सकता। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल समझ में आया? ट्रैफिकिंग शब्द का मतलब बताओ, खरीदा बेची। पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल मतलब गवर्नमेंट का जॉब एंड गवर्नमेंट का टाइटल्स। फिर एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी दिखाई दे रहा है क्या? नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट फिर भी अगर तुम सुनना चाहते सुन ले। किसी का जो लीगल ड्यूटी है, बोलो, उसको रोक नहीं सकते हम लोग पैसा दे करके। जैसे ऑडिटर, ऑडिटर मेरे को सही रिपोर्ट देगा, हम बोले सुनना गलत रिपोर्ट दे, पर्दा मत फाश कर, 5 करोड़ ले, ये सब वॉइड है। हम ऑडिटर को घूस दे दिए, ऑडिटर मेरे को जो है ना, ऑडिटर हम लोग का कंपनी का पर्दाफाश करने वाला था, हम लोग उसको 5 करोड़ दे दिए, ये सब क्या है? वॉइड है। फिर पर्सनल लिबर्टी याद आ रहा है क्या? कसम खाते हैं चाय छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, जैकेट पहनना छोड़ देंगे, कभी किसी लड़की से बात नहीं करेंगे या लड़का से बात नहीं करेंगे। अरे करो भाई, जियो और जीने दो। हम लोग अपना पर्सनल लिबर्टी को रोक नहीं सकते। पक्का? रेस्ट्रेनमेंट ऑफ मैरिज, वादा करते हैं कभी शादी नहीं करेंगे। वादा करते हैं कभी शादी नहीं करेंगे, वॉइड वॉइड। अच्छा लोग बोले हो चुका और नहीं करेंगे, खुश, वॉइड। मैरिज ब्रोकरेज दिखाई दे रहा है क्या? ये लड़का शादी जैसा पवित्र रिश्ता के लिए ब्रोकरेज लेता है, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का ढूंढ करके लाता है और ऊपर से ब्रोकरेज लेता है। गंदा काम है ये। तुम प्रॉपर्टी का खरीदा बेची करो, शेयर का खरीदा बेची करो, उसका ब्रोकरेज लो, लड़का लड़की का ब्रोकरेज मत लो। एग्रीमेंट, नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट है, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मार्शल ड्यूटी। सोल्जर, मैं सोल्जर हूं मान लो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि बॉर्डर में शांति है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं बॉर्डर में शांति है, समझ आया? अब मान लो बॉर्डर में थोड़ा हलचल हो गया, मेरे को इंडियन आर्मी फोन किया, मेजर मोहित आप तुरंत आइए। अब हम आप लोग को बोले देखो मेरे को जाना पड़ेगा, बॉर्डर में मेरा दरकार है, मेरे को बोला सिलेबस कंप्लीट कर, अबे ओए वॉइड है, समझ में आया? वॉइड है, हम जा सकते हैं। मार्शल ड्यूटी के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, तोप चला देगा सोल्जर। फिर नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर और रेवेन्यू अथॉरिटी। एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड, डिफ्रॉड मतलब धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, क्रेडिटर्स और रेवेन्यू अथॉरिटी। समझा? गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ब्राइब कर दिए, ले 5 करोड़ ले, शांति से बैठ, ये सब एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। अच्छा फिर नीचे में लिख दो, लिखवाया हुआ ही होगा, सबका लिखवाया होगा रे। एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एवरीवन, एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ 2 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट, पार्शियल। 1000 बार से ज्यादा बार बोल चुका है ये कि एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में भी ऑफ 2 टाइप, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट, पार्शियल रेस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट means that a person will not be allowed to do any kind of business, any kind of profession, anywhere, anytime. Absolute restraint means a person will not be allowed to do any kind of business, profession, anywhere, anytime. Such absolute restraint on trade is void. Partial restraint means a person will not be allowed to do trade or business or profession in a particular area for a particular time.
Such restrictions are partial and valid. तुम कभी भी कहीं पर भी कोई भी धंधा नहीं करोगे, void. मेरे एरिया में नहीं करोगे, valid. परफॉर्मेंस एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि डिस्चार्ज हो जाएगा? 6 केस में डिस्चार्ज हो. एक सेकंड. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ बाय परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, म्यूचुअल कंसेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लैप्स ऑफ टाइम, म्यूचुअल कंसेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ. सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाई. परफॉर्मेंस कौन कर सकता है? पार्टीज कर सकते हैं. लीगल रिप्रेजेंटेटिव. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टीज. लास्ट बेंच सेकंड बॉय. उसी दीवार के अंदर अनारकली बनाएंगे तुमको. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस कैन बी गिवन बाय द पार्टीज, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. पार्टीज, एजेंट. हम लोग का एजेंट परफॉर्म कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है, जॉइंट प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है. जॉइंट प्रोमिसर का फटाफट एक बार सुन लो. मान लो एबीसी 3 जन थे, 6,000 रुपया मेरे को पड़ा था. क्या मैं इसे 6,000 ले सकते हैं? एक ज्यादा कितना दिया? एक्चुअल में तो 3 जन है, 6,000 रुपया 2,000 करके पार्टी में आना चाहिए था. क्या मैं इसे 6,000 ले सकते हैं? ए ने ज्यादा कितना दिया? ए को देना तो 2,000 चाहिए था, बड़ा मुझसे 6,000 लिए. ज्यादा कितना दिया? वो 4,000. ए बी से कितना लेगा? 2,000. सी से 2,000. मर मुरा गए ना इन लोग, तो इन लोग का लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ले लेना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से. लेकिन अगर सी इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसको हटा दो. तब 6,000 रुपया डिवाइडेड बाय 2 करो, 3,000. तब वो बी से कितना लेगा? 3,000. बी भी इंसॉल्वेंट हो गया, तब अकेला ए कितना देगा? 6,000. तीन इंसॉल्वेंट हो गए तो हम भुगतेंगे. वंस मोर आई विल एक्सप्लेन दिस. पक्का? पॉइंट नंबर पे नंबर 29. डिस्चार्ज में म्यूचुअल कंसेंट दिखाई दे रहा है क्या? म्यूचुअल कंसेंट मतलब एक की मर्जी, दोनों मर्जी. म्यूचुअल कंसेंट मतलब बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री. क्या सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? नोवेशन. नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन में ये होता है when the old contract is substituted by a new contract. The consideration means discharge of old contract. When a new contract is entered and the consideration is the discharge of the old contract. Novation. पुराना करेगा, नया आ गया बे, हटा 7 गेट. पुराना करेगा, नया आ गया. पहले X का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रॉपर्टी X का. मैंने Y का सौदा कर लिया, मेरे को Y पसंद आया. हम बोले देख हम तेरे से Y खरीदेंगे प्रोवाइडेड कि हमको X नहीं खरीदना पड़े. पहले हम लोग के बीच में X का सौदा होता है, X हटा करके Y ले आए, इसको क्या बोलेंगे? नोवेशन. X वाला कॉन्ट्रैक्ट रहा के डिस्चार्ज हो गया बाय म्यूचुअल कंसेंट. नोवेशन. ऑल्टरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया, तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन, तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज बाय ऑल्टरेशन. पक्का? रेसिशन, रेमिशन, वेवर. रेसिशन में दोनों का ही मन नहीं है, बोलो. रेसिशन में दोनों का ही मन नहीं है. रेमिशन में हम थोड़ा माफ किए, 5,000 में 1,000 रुपया दिया था, हम बोले 4,000 रुपया माफ जा. वेवर में पूरा ही माफ कर दी. नोवेशन में पुराना हटा करके, ऑल्टरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन इज गेटिंग चेंज. रेसिशन में बोथ द पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. रेमिशन में पार्ट परफॉर्मेंस इज वेव्ड ऑफ. वेवर में फुल परफॉर्मेंस इज वेव्ड ऑफ. ऑपरेशन ऑफ लॉ. मर्जर में क्या होता है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट इज एम्बॉडीड इन अ सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट. छोटा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में समा गया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना मर्जर के कारण. पहले X का सौदा हुआ था, अभी X प्लस Y. हम लोग पहले X खरीदने का बात किया था, अब हम बोल रहे हैं X भी खरीदेंगे भाई. लेट्स मेक अ बिगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ X एंड Y in which the previous small contract of X will be embodied. नोवेशन और इसमें फर्क क्या? मर्जर में नोवेशन में X की जगह Y है, मर्जर में X के साथ Y है. मर्जर के बाद अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन याद रहा है क्या? चोर है, 1.0 व्हाइटनर से मिटा दिया, या फिर सामने वाला क्या हो गया? इंसॉल्वेंट. लैप्स ऑफ टाइम याद आ रहा है क्या? कितना साल बाद हर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा? फिर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है क्या? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. When the contract was possible to perform at the time when it was entered, but because of supervening impossibility it becomes. उस समय जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वैलिड था क्या? बाद में वॉइड हो गया क्या? वर्ड एग्रीमेंट के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. 4 एग्जांपल तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का. वॉर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. वॉर, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे घोड़ा जिंदा था, गए तो देखे कि मरा हुआ है. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. डिस्ट्रक्शन ऑफ पक्का. पर्सनल इनकैपेसिटी, जब एंटर किए थे सोनू का गला ठीक था, एंटर करने के बाद सोनू का गला खराब हो गया, पर्सनल इनकैपेसिटी.
Non-existence of continued state of affair. Non-existence of continued state of affair. When the contract was entered on the basis of certain affair. क्या था affair? राज तिलक. राज तिलक खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म. 3 के सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता. दिक्कत हो रहा है, सह और परफॉर्म कर. डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, कमर्शियल लॉसेस, स्ट्राइक, लॉकआउट. उसके फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, उसके फैक्ट्री में, उससे मतलब ये सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटी. 3 चीज नहीं होता. डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, कमर्शियल लॉस, स्ट्राइक, लॉकआउट. सिविल डिस्टर्बेंसेस लाइक राइट्स. डिस्चार्ज बाय ब्रीच सिखाई दे रहा है क्या? सुनो ना, ड्यू डेट के पहले ही ब्रीच हो गया तो क्या है? एंटीसिपेटरी. ड्यू डेट वाले दिन या उसके बाद ब्रीच हुआ तो एक्चुअल. ड्यू डेट के पहले ब्रीच हो गया, एंटीसिपेटरी. ड्यू डेट वाले दिन या उसके बाद ब्रीच हुआ, ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी. क्या उस समय अग्री पार्टी सू कर सकता है कि ड्यू डेट का वेट करेगा? वो उस समय भी सू कर सकता है. उसका मन, वो वेट करके ड्यू डेट पर भी सू कर सकता है. पक्का. अगर उसने वेट किया ड्यू डेट तक और ड्यू डेट में परफॉर्म हो गया, तब वो सू नहीं कर सकता कि परफॉर्म हो गया. एक्चुअल ब्रीच मतलब ब्रीच ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द डेट. ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी. ऑन और आफ्टर ड्यू डेट इज कॉल्ड एक्चुअल. ब्रीच हो गया तो छोड़ेगा, हम लोग छोड़ेंगे सामने लोगों को, स्यू करेंगे. डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन. बोलो, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन. जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डैमेजेस लिखा हुआ था, लिक्विडेटेड. इफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डैमेजेस वर मेंशन्ड, लिक्विडेटेड. एग्जैक्ट अमाउंट वाज नॉट मेंशन्ड, exact amount mentioned, liquidated. Exact amount not mentioned, unliquidated. Can be of 4 types: ordinary, special, vindictive. Vindictive का और एक नाम है exemplary, punitive, और एक नाम है nominal. लास्ट वाला nominal. Ordinary, special, vindictive, nominal. The loss that the party has suffered because of breach. The loss that the party has suffered because of the breach. The contract price that I was supposed to receive but I is known as what? Ordinary damage. मेरे को 10,000 मिलना था, नहीं मिला. मेरा ordinary damage कितना? 10,000. स्पेशल डैमेज क्या होता है? 2 केस में वसूल सकते हैं. दोनों केस सेटिस्फाई होगा तभी वसूल सकते हैं. When nature of special loss was mentioned in the contract and I have actually suffered that special loss, then I can recover special damage. मैंने पहले बोल दिया था 10 तारीख तक अगर तुम मेरे को माल सप्लाई नहीं किया, हम चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे और चाइना मेरे ऊपर पेनल्टी लगाएगा, मेरा जहाज का भाड़ा बर्बाद जाएगा. लिखा हुआ था. इसने 10 तारीख तक माल सप्लाई नहीं किया मेरे को, मेरा जहाज का भाड़ा बर्बाद किया, चाइना वाला मेरे ऊपर पेनल्टी लगाया. सब हम इसे ले सकते हैं क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था. अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, नेचर और स्पेशल लॉस लिखा हुआ था, तो हम इसे ले सकते हैं स्पेशल डैमेज. पक्का. फिर विंडिक्टिव डैमेज इज फॉर लॉस ऑफ गुडविल इन 2 केसेस: ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, लोअर द अमाउंट ऑफ चेक डिसऑनर, हायर द इज्जत गॉन, हायर द विंडिक्टिव डैमेज. एंड नॉमिनल डैमेज एक टोकन मनी होता है, 25 पैसे 1 रुपया, जो को डिसाइड करता है. जब मेरे को एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी इसने ब्रीच किया तो किया क्यों, मेरे को क्या मिलेगा? नॉमिनल डैमेज. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आ जाओ. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब द पार्टी विल बी made compulsorily perform the contract. Court will make the party compulsorily perform the contract. But कुछ केस में specific performance possible नहीं. When damages are the adequate remedy. Specific performance नहीं मिलेगा when damages are the adequate. When the party is a minor, damages are adequate remedy. Party is a minor. Personal capacity, personal qualification है तो specific performance नहीं होगा. या when the contract runs into minute detail which the court is not capable of supervising. एग्जाम्पल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल. तो 4 केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 4 केस में नहीं मिलेगा. बताओ कौन सा 4 केस? मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट है, कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज. एग्जाम्पल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल सर्विस, या फिर माइनर. इंजंक्शन इज अ पॉजिटिव ऑर्डर की नेगेटिव ऑर्डर विच विल रेस्ट्रेन, स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही परफॉर्म्स अ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट. तो मेरा नहीं तो और किसी का भी नहीं. वेरी नेगेटिव ऑर्डर. How to calculate damages? Court will calculate. Page 34. Contingent and quasi contract. Contingent contract is valid ki invalid? Valid. Wagering agreement is invalid. Wagering agreement is invalid. But contingent contracts are valid. Wagering agreement मतलब क्या होता है? Betting agreement. It is void all over India. Wagering agreement void all over India except Maharashtra and Gujarat where it's illegal. Contingent contract according to section 31 is a contract to do or not to do something. It's a contract to do or not to do something which depends on happening or non happening of an uncertain future collateral event. Valid. I will perform the contract if that event happens. I will perform the contract if that event does not. I will not perform the contract if that event happens. I will not perform the contract if that event does not happen.
चार केस था ना कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट का। मैं काम करेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर ऐसा हुआ तो, मैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं करेगा ऐसा हुआ तो, मैं नहीं करेगा ऐसा नहीं हुआ तो। सबसे क्लासिक एग्जांपल रहता है, I'll sell you the good if the ship in which the goods are there reaches a port safely. If the ship reaches a port safely, I'll sell you the goods. ये कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट है। बट ये दो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आएगा कि नहीं आएगा, भेज रही। अबे आएगा नहीं आएगा क्या उखाड़ क्या लोगे तुम लोग, हम तो इसको माल बेचेंगे आ गया तो। इन लोग खेल रहे सिर्फ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, भेज रही। और हम बोल रहे शिप आएगा तो माल बेचेंगे, शिप नहीं आएगा तो माल नहीं बेचेंगे। ये कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट है। Are we through with this? हम बोले हम तभी गाना गाने जाएंगे जब कठिन आएगी शो में। ये क्या है, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट। इन लोग तो कठिन आएगी कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, कोई बुलाया तुम लोग को, भेज देंगे। Are we through with this? Page number 36. Page number 36. No more debate. Loco Plateri, ex Liana, Justua. No more debate. Loco Plateri, ex Liana, Justua. No man must enrich himself at the expense of other. No one can enrich himself at the expense of other. कोई भी इंसान अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकता किसी और को नुकसान पहुंच। हम अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा सकते किसी और को नुकसान पहुंचा करके। इंसानियत जिंदा रखना पड़ेगा, इसलिए कुछ एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है, भले सेक्शन 10 सेटिस्फाई नहीं हुआ। 5 केस था इसका, सेक्शन 68 से लेकर के 72, सेक्शन 68 से लेकर के 72। इसको क्या बोलता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन 10 satisfied के नॉट satisfied, but no one can enrich himself at the expense of other, so these contracts are valid। सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72। सेक्शन 68 में क्या था, नेसेसरीज सप्लाई टू माइनर लुनेटिक। सेक्शन 69 में याद आ रहा है, राइट टू रिकवर मनी, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अदर टू प्रोटेक्ट ओन सेल्फ इंटरेस्ट। लैंडलॉर्ड ने टैक्स नहीं दिया, हम उसका टैक्स देते, क्या हम उससे वसूल सकते हैं? हाँ, टू प्रोटेक्ट ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इतने बच्चों को लेकर के हम कहां जाएंगे, नहीं समझ में आया। लेकिन सुनो ना, बगल में भी लैंडलॉर्ड का जाकर के हम टैक्स दे दिए, क्या उससे हम वसूल सकते हैं? क्यों दिए, मेरा वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मैंने किसी का लायबिलिटी पे किया अपने इंटरेस्ट के लिए तो मैं उससे वसूल सकता हूं। यहां का टैक्स नहीं देता तो म्युनिसिपैलिटी वाले निकाल देते, इसलिए मैंने यहां का टैक्स दे दिया, और फिर मैं किससे वसूल सकता हूं, लैंडलॉर्ड। फिर enjoying the benefit of non-gratuitous। नॉन ग्रेचुइटस मतलब नॉट फ्री। बगल वाला घर में पिज्जा देने आया था, गलती से हम लोग के पास आ गया, हम लोग खा गए, क्या चुकाना पड़ेगा क्या? हम लोग तो मंगवाए नहीं थे, तो खाए क्यों? फ्री में पिज्जा मिलता है, खाए हो ना, आप चुकाओ, पक्का। कितना चुकाओ, क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्न। ये माली अचानक से, हम इसको रखे नहीं है, मेरा गार्डन आकर के साफ सफाई करने लगा, महीना भर साफ किया, क्या मेरे को तनख्वाह देना पड़ेगा? हम रखे नहीं है बे, एंजॉय तो किए हैं ना, और मेरे को भी इसको मजा देना पड़ेगा, एज मच एज अर्न, पक्का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड। अगर 2/3 या उससे ज्यादा हम लोग खर्चा कर देते हैं, बेच सकते हैं। एंड अगर गलती से किसी को हम लोग एक्स्ट्रा रुपया दे दिया, क्या रिकवर कर सकते हैं क्या? वेजिंग और कंटिन्यूइंग का डिफरेंस पढ़ चुके हैं, पेज 39 में कौसी पढ़ चुके हैं क्या, क्वांटम मेरिट पढ़ चुके हैं क्या? क्वांटम मेरिट इज एज मच एज अर्न। पेज 39 में 2 टर्म लिखोगे, लिखो चैम्पर्टी। पेज 39 जहां खत्म हो रहा है ना, वहां लिखो चैम्पर्टी। पेज 39 में जाकर के लिखो चैम्पर्टी। चैम्पर्टी लिखा? चैम्पर्टी में क्या होता है, इधर देखो, चैम्पर्टी में होता क्या है, रेडी? चैम्पर्टी में ये होता है, कुछ ऐसा होता है, सामने वाला को हम बोलते हैं, चैम्पर्टी के अंदर हम सामने वाला को बोलते हैं कि हम तेरे को केस जिता देंगे, आई विल मेक यू विन द, बट जब केस जो जीत जाओगे ना, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है, मेरे को उसमें हिस्सा चाहिए। पुरानी हवेली का केस चल रहा है ना, हम मदद करेंगे और पुरानी हवेली तेरे को जिता देंगे, लेकिन एक तल्ला हमको देना होगा। नहीं समझ में आया? तो when there is an agreement between two parties in which party wants the share of the winning proceed, when there is an agreement between the two parties in which party wants the share of the winning proceed, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, चैम्पर्टी। लिख दो ऐसे करके, एग्रीमेंट
agreement to share the subject matter, agreement to share the subject matter of the winning proceeds, agreement to share the subject matter of the winning proceeds, agreement to share the subject matter, agreement to share the subject matter of the winning proceeds. लिख दिया? फिर फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में आओ और लिखो मेंटेनेंस. मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में लिखो, ऐसे लिखवा दिए नॉलेज के लिए. मेंटेनेंस में इस बार सुनना, मेंटेनेंस में हमको तेरे से पैसा वैसा मतलब हमको तेरा प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर विनिंग प्रोसीड नहीं, मेरे को खाली मेरा लीगल फीस चाहिए. क्या चाहिए? फीस. लिख दो. विनिंग प्रोसीड्स विल नॉट बी शेयर्ड, ओनली winning proceeds will not be shared, only fees will be taken by one party, only fees will be taken by one party who agrees to assist the other party in winning the case. Fees will be taken by one party, fees will be taken by one party who agrees to assist the other party, who agrees to assist the other party in winning the case. Fees will be taken by one party who agrees to assist the other party in winning the case. Fees will be taken by one party who agrees to assist the other party in winning the case. Fees will be taken by one party who agrees to assist the other party in winning the case. चंपाटी में मेरे को क्या चाहिए? जीत का माल. चंपाटी में जीत का माल. मेंटेनेंस में मेरे को जीत का माल नहीं चाहिए, मेरे को मेरा खाली फीस चाहिए. अब थ्रो विद दिस. अब तुम जीते हारे मेरे को से मतलब नहीं है. चंपाटी में मेरे को कब मिलेगा? जब ये जीतेगा, जीत का माल मिलेगा. और मेंटेनेंस में ये हारे जीते मेरे को भैया मेरा लॉयर का लीगल क्या दे दो? फीस. अभी थ्रो विद दिस. This completes my exhaustive revision of Indian Contract Act 1872.